Today we are going to discuss about different stages of first language acquisition. Okay, so in the last class, we try to understand what is first language, what is second language, what is its importance in teaching learning. Okay, and then we try to understand how people are a person is acquiring language. Okay, we are studied or we understood that on both environment and the ability, the mental ability of the person to grasp the language. Both are important for us as teachers to develop the language or to make the student acquire the language. That is the idea. That's why I discussed it. Because as a teacher, you may be first language teacher, second language teacher, you are going to teach many language, or the situation is also that you are going to teach the same language at different levels. Okay, so for example, what I am saying is Gujarati may be first language or second language according to the medium of instruction or according to the school you joined. So, understanding the status of that language, you have to design the teaching learning. That is the main idea. Okay. So, one. So now I will start the presentation. Okay. And gradually we will move on. Are you able to see the presentation? Yes, ma'am. Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So this is first day we are discussing, and this is a bit long also. So we will see to how much extent we are going to complete. Otherwise, we will continue with the next thing. Okay. So this is first language acquisition. So all the discussion that we are going to is a basing on the conclusion that your mother tongue is your first language. So it is starting from the birth of a child. Okay, so we are assuming first language is mother tongue. So basing on that, these stages are defined. Okay, so what is first language acquisition? Okay, so first language acquisition, how a child develops the ability to speak. Okay, ability to speak in the environment. Okay. So by birth, child is exposed to a particular context, particular environment. From there, by gradually, along with the growth years, they acquire the language. Okay, so that natural language, the language that is used by parents, that we are considering as the first language. Okay, so they may be, as we are seeing here, we are also thinking that first language may not be the mother tongue. Different languages may be there, so they are exposed to this language of their environment. So how a child develop its ability to speak and use the language of its environment, its native language or languages. Okay, so they may be one or two language, but generally what we mean is the language of the family, the language used by the parents. Outside the home, language may be different or same. So language is part of the environment that a child is born into, and it is even part of the environment before birth. Therefore, first language acquisition begins at or before birth. Okay, so this is the idea. First language acquisition. See in our scriptures also we have certain ideas even before birth. The child while living in the womb of the mother by the time of achieving 5 months, 6 months pregnancy. So we have the idea that the child starts interacting. The child could interact, could listen, could respond to certain gestures. We have all these ideas. Even in Mahabharata, if you see, Abhimanyu learnt the idea of entering into the Padma Vyuha while Arjuna is explaining to his wife. He is explaining to Subhadra.
So he learnt that, but by some other reason, what had happened, it was stopped in between, so he could not learn. So during the battle, he entered into the Padmavira, but he could not come out. So in the womb also, child could learn something. So the first language acquisition begins at our, by the time you take birth, officially it started, but before birth also, in the womb also, the child is reacting. So that means they are getting exposure, because we are living in an environment where a language is dominating. First language, a dominant language is spoken, for which the child gets attachment. This is not language. See, whatever things we are doing, so that's why we expect mother to be happy. They give her all the things that she likes. खाने के लिए अच्छा दे दो, उसको जो चाहिए वो खरीद के दे दो. जितना हम मदर को खुश रखे, बच्चे का इतना एक्सपीरियंसेस होता है. So if language is also one such experience, the language acquisition is starting before birth. That is the idea. Then we are coming, what are the different stages of language acquisition. Okay, so there are 6 stages, almost 6 stages: pre-linguistic stage, babbling stage, first words, 2 word stage, telegraphic stage, and beyond telegraphic stage. That means starting at 1 or 2 months, we are moving till the baby, till the baby is living, even till death. This language learning is going on. Okay, it is a continuous process. It is never ending process. So we are trying to understand how the child acquires the language stage by stage. Okay, there are 6 stages: pre-linguistic stage, babbling stage, first words, 2 word stage, telegraphic stage, beyond telegraphic stage. Okay, now I am starting with the pre-linguistic stage. See, till the time we come to 2 word stage, the process is a bit long. The child is doing so many things, so I am explaining each and important things here. So this is going to be a long one. The telegraphic and beyond telegraphic are short ones. So you try to concentrate. I have given heading clearly, so don't get confused. Okay. So pre-linguistic stage, it starts. Pre-linguistic stage starts from birth to approximately 6 months, 1 month to 6th month. See, by the time they take birth, we start interacting with the children. So we start interacting with the baby. We say something to the baby. At least we touch them. We try to give them some kind of comfort. We wrap them in clothes. We take them into lab. We do so many things. So this interaction starts approximately starting by the time at the time of birth to 6 months. So here, what during the 6 months, what generally the baby does, the baby uses the sounds. Baby uses the sounds. What these sounds are identified: crying, whimpering, and cooing. So if they have any need, they cry. Depending on the range of the cry, we try to understand what is their requirement. उसको खाना चाहिए, कुछ खराब हो गया, निकालना है, डर के वो रो रहा है. Otherwise they make certain normal. Even if they are happy, they may give something. If you are saying something, they try to respond. Okay, so all these things are all these things are are understood by different names: whimpering, cooing, and crying. These sounds are not considered as language because they are involuntary responses to stimuli. So stimuli means यहाँ मुझे भूख लगा, वो भी एक stimulus है. मुझे डर लगा, stimulus है. I am talking to the child, so they are responding. So these sounds are generally automatically they elicited as a response to a particular stimuli. So we are not considering it as a language. लैंग्वेज की एक प्रिंसिपल है, लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स है, उस कैरेक्टरिस्टिक में ये फिट नहीं बैठता है. These noises do not fit within the definition of language. This stage occurs before language is produced by the child, so it is known as pre-linguistic stage. Language
जो वो बड़बड़ा रहा है, खाली बड़बड़ा रहा है, उसका कोई मीनिंग नहीं है. वी आर एलिसिटिंग Sorry मीनिंग. to interrupt you, ma'am. हाँ, PPT is not displaying, ma'am. पीपीटी नहीं आ रहे हैं. 1 मिनट, लेट मी सी. एक बार स्टॉप करके करूं. It's visible to Ma'am, us. we are able to see it. Ma'am, it's visible. It is It is visible. not visible, ma'am. ओके, तो आपका कुछ कनेक्शन चेक करो, अभी देखो, क्योंकि मेरे इसमें भी ठीक ही है. ओके, so generally because these noises that purpose is elicited by parents. हम उसके साथ हम रहते हैं तो हम उसको समझ पाते हैं, बाकी लोगों को समझ में नहीं आता है. But language means it should give equal meaning to all. So because of this, because it is not fitting the definition of the language and it is occurring actually before they start learning speaking, it is called as pre-linguistic stage. Speaking भी नहीं, कुछ भी वो एक meaningful gesture या meaningful symbol हमारे साथ शेयर करे, उसके पहले ये होता है. So that's why we are calling it as pre-linguistic stage. Okay, so we are continuing with the pre-linguistic stage further. So why it is happening? Because the vocal system, these speaking ability, the physical organs related with the speaking ability, they are not developed properly. So because of this, what is happening? They are not in a position to give out proper syllables. कुछ वो बोल भी नहीं पाता क्योंकि उसका vocal system develop नहीं हुआ है. सो वो शब्द बाहर नहीं निकाल सकते हैं, तो कुछ साउंड्स आता है, मीनिंगलेस साउंड्स, कुछ भी वो बोल रहा है. Infants, that's why they can produce sounds only. Even the infants can't produce linguistic sounds, they can perceive them. तो वो हमारे लिए वो जो बोल सकता है, जो प्रोड्यूस कर सकता है, इतने ही साउंड्स वो प्रोड्यूस कर रहे हैं. बट दे कुड अंडरस्टैंड दी or they could perceive the sounds that are received by them. They receive the sounds, they can perceive the sounds. Infants do not seem to attach meaning to the changes in sounds, but they notice them. उसको इतना पता नहीं चलता है कि एग्जैक्टली ये क्या है, किसके लिए बोल रहा है, बट दे कुड नोटिस कि समथिंग इज बीइंग टोल्ड टू मी. कुछ साउंड आई एम परसीविंग, हम बोल रहे हैं या आजू बाजू में साउंड हो रहे हैं, एटलीस्ट दे रेस्पॉन्ड कि वो उस तरफ देखते हैं, है ना. उसका लिसनिंग कैपेसिटी सही है कि नहीं करके हम उसके सामने ताली मारते हैं, सब कुछ करते हैं, है ना. So because of this, they could notice them, they could respond to them, but they may not understand the exact meaning. क्यों हो रहा है, क्या है, एक साउंड हो रहा है. So they perceive them, they could notice them. तो इतना ही होता है. So for their requirement purpose, they are eliciting different sounds which are understood by the parents or caretakers, but they have no meaning. Particular single meaning, or they are not exactly the language. So from birth to 6 months stage we are considering as the pre-linguistic stage. So this is what the baby is doing. Okay, so they are just doing everything, or they are communicating with these sounds only, either crying, whimpering or cooing. If they are happy after taking food, so वो हाथ पैर हिलाते हुए कूं करके करता रहेगा, and we there is no meaning for that. We understood that they are satisfied now, so we can concentrate on our work. Okay, so this is pre-linguistic stage. The next stage after 6 months, the stage is known as babbling stage. Babbling stage. So here it is ranging from 6 months to 1 year. So gradually the crying or the sounds are gradually they are turning into certain words. अभी एक अक्षर हमको सुनने को मिलते हैं, मामा मामा बोलते हैं, पापा पा बा बा बा, ऐसा जो भी एक वर्ड को पकड़ के वो बोलते रहते हैं. So such kind of repetition is known as babbling. They are using simple one letter they started repeating. So if they are using the syllable matlab letter, if they are using the
single sound repetitively, it is repetitive babbling. If they are mama, papa, ऐसा, otherwise simply ba 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 ऐसे ही बोलते हैं. But if they are using it with some space, mama, mami, baba, boo boo, so they are using two syllables, or they are using varied syllables. Mami, mami use किया है, papi. So they start using varied syllables. It is variegated babbling. यहाँ क्या है कि they are trying to bring out certain words, exactly meaningful words नहीं, but they are bringing out the syllables. अक्षर तो बोलते हैं, उसका कुछ मीनिंग कुछ नहीं, ऐसे ही बोलना शुरू करते हैं. तो हम उसको पॉइंट आउट करते हैं कि मामा बोलो, पापा बोलो, दीदी बोलो. So we try to give them that extra syllable so that वो थोड़ा word को पकड़े, वो ऐसे ही repeat, कोई repeat करना है तो करेंगे. So all children use the same sounds when they babble, no matter what the language around them is. So the babbling stage is same for the any children, any human infant. कोई भी infant हो दुनिया भर में कहीं से भी हो, they use the same sounds. सबका यही होता है, but वो हम अपने लैंग्वेज के मुताबिक उसको टर्न आउट करने की कोशिश करते हैं. उसके सामने बोलते रहते हैं, मामा है तो मामा बोलो, मामा नहीं, कहीं लोग अम्मा बोलते हैं तो मामा नहीं अम्मा बोलो. तो दे कैन नॉट प्रोड्यूस दैट, वो लेकिन वो मामा को भी वो ऐसे ही प्रोनाउंसिएशन में लाने की कोशिश करते हैं. ठीक है. So they दुनिया भर में कहीं भी देखो ह्यूमन इन्फेंट्स का babbling stage, the words are the syllables that are coming out during this babbling stage are same. This is so as the way to make a sound is simply open and close the mouth. ये ऐसा क्यों होता है कि इस टाइम पे भी उसका बोलने की शक्ति नहीं आई है, but the organs, the speaking organs, the vocal cords, the vocal system is gradually evolving. So यहाँ वो क्या करता है, simply मुंह को बंद करके ओपन करके, बंद करके ओपन करके वो साउंड प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है. सो बिकॉज ऑफ दिस द सिलेबल्स दैट आर कमिंग आर सेम. तो दुनिया भर में यही द वे द बेबी इज ट्राइंग टू स्पीक इज क्लोजिंग एंड ओपनिंग द माउथ. सो बिकॉज ऑफ दिस द syllables are the sounds that are coming are same world over. तो उसके बाद में because according to the language वो change होता है. So continuing with the babbling stage, तो यहाँ हम इसको baby talk बोलते हैं. baby talk, babbling, उसका तो words आ रहा है, उसको हम channelize कर रहे हैं. So यहाँ baby talk का मतलब क्या है? So it has two different meanings. Baby talk means what the baby is producing, what the infant is producing. So they are trying to talk and convey to us something. Okay. So what the baby is conveying to other person, to parents and caretakers. In one way it is baby talk. Second is we try to use that same language with the baby in order to communicate. And as parents or caretakers we try to understand, आपको मामा बोल रहे हैं तो मम्मम चाहिए, क्या चाहिए, पानी चाहिए. We try to talk with them using the same thing. है ना. बेबीज डे आउट, वो सिनेमा में आप देखो लास्ट में वो पुलिस वाला बेबी को सब रेस्क्यू किया, बेबी को वो लेके जा रहे हैं. देन द बेबी पॉइंट आउट्स टू द टावर वेयर ही वाज केप्ट फॉर सम टाइम because by the kidnappers. It says bubu. Bubu means the book that is carried with him all the time, from which the nanny reads out stories. उससे उसको बताती थी. So he points out to that tower and say bubu, मेरा बुबू वहाँ है. Then that police officer also says हम वहाँ जाते हैं, go to the tower where the TikTok, मतलब TikTok is घड़ी है. So tower with TikTok to get the bubu, if you follow. So we try to use the same kind of words used by the baby to communicate in order to develop that communication. Okay, otherwise in order to develop that their communication or language. So this is baby talk here. Babbling stage में ये रहता है. Baby uses specific sounds, specific syllables. Okay,
and then the parents also try to communicate with the same language. We have our language, but we try to at least we use that particular word in order to make the baby understand. Okay, so now we are moving into the third stage where simple words are coming for the baby. So this is the first words stage. So it starts about 1 year, 9 months. 9 months आते ही बच्चे बोलना शुरू करेंगे धीरे धीरे, एक एक वर्ड, मम्मा, मामा, पापा, मामी, दादा, दादी, ऐसा सिंपल एक सिंगल वर्ड यूज करना वो शुरू करेंगे. सो अराउंड 1 year, द फर्स्ट वर्ड स्टेज, 1 to 2 years हम बोल सकते हैं. इसमें हम उसको वोकेबुलरी देने के लिए कोशिश करते हैं. ठीक है, तो यहाँ प्रॉब्लम ये है कि दिस इज नोन एज होलोफ्रेजिक फ्रेस्टिक stage. Holophrase means they use one word and this one word is equivalent to one sentence. Okay, so अभी मैंने आपको बोल दिया, वो टावर को पॉइंट आउट करते बोलता है बुबू. बुबू मतलब ही इज सेइंग बुक, लेकिन उसका मीनिंग है कि मेरा बुक वहां है, मेरा बुक वहां है, बिकॉज साइमल्टेनियसली ही इज पॉइंटिंग आउट and he is conveying that मेरा बुक वहां है, हाँ मुझे वो चाहिए. So it has a long meaning. So this is a holophrase. They use one word but it conveys sentences. One sentence, entire sentence हमको पता चलता है. Okay, पेट पे हाथ रखे मम्मम बोला मतलब मुझे भूख लग रहा है, पानी चाहिए, खाना चाहिए, पानी चाहिए. So they have that kind of one word. They use one word and try to convey the meaning कि मुझे ये चाहिए. Meaning is attached to the syllables produced by a child and this characteristic distinguishes a babble from a word. पहले babbling में कुछ नहीं, we try to give that meaning to that. वो जो भी बोल रहा है उसका एक meaning लेके हम उसके साथ communicate करके उसको वो हाँ या ना बोलता है, we give them, we try to satisfy their need. But here in the first word stage, after 1 year, they try to convey the meaning. जो भी वर्ड बोल रहे हैं उसका एक मीनिंग है, एंड because it has a meaning, it is differentiated from babble. Even though the same word used before 1 year, उसका मीनिंग कुछ पता नहीं. They start babbling that word. हमने बोल दिया अम्मा 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 अम्मा, ऐसा वो बोलता रहता है, but they have no meaning. But now they have a need and they are communicating with a one word. So we can say that a particular language has started. one words में वो language द्वारा, words द्वारा communicate कर रहा है, इतना हम बोल सकते हैं. Okay, they continue to abilities to produce more and more individual sound segments. The sounds they produce are typically sounds in the language of their environment and they add to their repertoire in a systematic way. So in this way they try to improve their vocabulary. So यहाँ आप जितना उसको objects दिखा के, अभी आप play toys वो सब देखो, बहुत ज्यादा हम एक्सपोजर देते हैं, चीजों की एक्सपोजर देते हैं, लोगों से परिचित करवाते हैं, चीजों से परिचित करवाते हैं. वी ट्राई टू टॉक टू देम, दिस इज द वर्ड. सो दो तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा एज क्या है, ये कौन है, देखो इसका नाम ये है, ये फल है, दिस इज ए फ्रूट. जो भी लैंग्वेज हम उसको बताना चाहते हैं, वी ट्राई टू गिव दोज वर्ड्स, वी ट्राई टू इम्प्रूव देयर वोकैबुलरी. ओके, सो यहाँ वोकैबुलरी आप दे दो, इसका मतलब ये नहीं कि एकदम अच्छा सा प्रोनाउंस करके वो बताएंगे, ऐसा यू कैन नेवर एक्सपेक्ट. तो जो भी वो बताता है पहले दे कैन स्पीक वोवेल्स एफिशिएंटली. लैंग्वेज में आपको पता है ना, वोवेल्स कॉन्सोनेंट्स होता है, तो पहले वो ए ई आई ओ यू वोवेल्स है, बाकी सब वर्ड्स इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स है. सो दे कैन प्रोनाउंस वोवेल्स वेरी एफिशिएंटली. जो भी नेटिव लैंग्वेज है उसका वोवेल्स वो पहले अच्छी बोल सकता है, एंड देन धीरे धीरे वो कॉन्सोनेंट्स धीरे धीरे आता है. सब कॉन्सोनेंट्स अगर बोलना है तो आ ई उ में आ से ये आई तक वो इजीली बोलता है, बाकी सब कॉन्सोनेंट्स धीरे धीरे आता है. का, खा, गा, घा,
इन या उसमें जो डिफिकल्ट है नहीं आएगा, धीरे 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 पहले इजी वाला आएगा। बिकॉज वोकल सिस्टम हमारा जो भी बोलने की सिस्टम है वो कैसे डेवलप हो रहा है, वोकल कॉर्ड्स कैसे डेवलप हो रहा है, हाउ दी mouth and the tongue and other organs, even teeth are also involved, how teeth and this tongue is interacting, that is a different system. So the articulation of all these organs make the child able to produce sounds. So depending on the development they gradually elicit the sounds. वो उसका organs बोलने की क्षमता, वो फिजिकल ऑर्गन्स जो है वो जैसे विकसित होता है वो इतना अच्छा वो कॉन्सोनेंट्स को पकड़ पाए। बट सब लोग किसी भी लैंग्वेज में सब बच्चे वोवेल्स को जल्दी पकड़ लेते हैं, इसलिए आप जो भी बोलो, आप काओ ऐसा बोल दिया तो बच्चा सी नहीं पकड़ पाएगा, दे में से आओ, लाइक आइक बोलेंगे, लाइक नहीं। ऐसे ही हमारे लैंग्वेज में भी आप जो बोलो पहले वो वोवेल साउंड को पकड़ेगा, वोवेल साउंड को पकड़ के दे स्टार्ट स्पीकिंग, धीरे धीरे जब उसमें वो क्षमता आई, जो ऑर्गन्स है वो सब इंटरेक्ट करना शुरू किया, तब वो ये सब बोल पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टू कंटिन्यूइंग विद द फर्स्ट वर्ड स्टेज, चिल्ड्रन कैन परसीव मोर साउंड सेगमेंट्स देन दे कैन प्रोड्यूस। ये किस लिए होता है कि बच्चा परसीव तो करता है, हम बोल रहे हैं सामने से, वी आर गिविंग देम सो मेनी वर्ड्स, वी ट्राई टू, हमारे पास ये होता है बच्चे को बोलना आया तो जल्दी जल्दी आना है क्योंकि 3 साल तक स्कूल में जाना है, एंड वी हैव, हमारा बच्चा है बोलना है, तो वी ट्राई टू गिव देम सो मेनी वर्ड्स, वो ले लेता है, दे कुड अंडरस्टैंड, दे कुड ग्रास्प, बट बिकॉज ऑफ द फिजिकल डेवलपमेंट लिमिटेशन अभी वो विकसित नहीं हुआ है, कहाँ से आएगा, तो दे ट्राई टू प्रोनाउंस इट एज दे कुड, उसकी अपनी क्षमता के मुताबिक वो बोलेंगे। तो इसलिए क्या होता है, दे विल ऑफन सब्स्टिट्यूट वन साउंड फॉर अनदर इन देयर ओन utterances. The substitutions or alterations they make are systematic in nature. They will always use the same sound as a substitute for their intended sound. इसलिए वो बोल नहीं पाता है। आप तो बोले वो पानी चाहिए, खाना चाहिए, तो खाना वो बोल नहीं सकता है, तो उसके पास खाना ये बोलने की क्षमता नहीं है, तो they fix a word mum, okay, they fix a word for particular thing, कुछ दिन वो बोलने की, because they perceived खाना है लेकिन उसको बोलना नहीं आया, so they develop their own word, वो वर्ड हमको कम्युनिकेट करता है, एंड एज लॉन्ग एज उसके पास वो खाना बोलने की शक्ति नहीं आती है तब तक दे स्टिक टू दैट वर्ड। तो इसलिए छोटे बच्चों से बोलना है तो उसकी मम्मी पापा वो सब हमको बताते हैं, ही इज आस्किंग दैट, बिकॉज वो उसके साथ हर रोज रहते हैं, तो दे कुड अंडरस्टैंड दी वोकैबुलरी, हमको समझ नहीं आता है ये क्या बोल रहा है, तो वो आपको ऐसा बोल रहा है, ही इज आस्किंग फॉर दिस, दिस इज द थिंग, बिकॉज दे सब्स्टिट्यूट, वो परसीव किया लेकिन दे कुड नॉट अटर द वर्ड बिकॉज ऑफ दिस लिमिटेशन, अभी वो डेवलप नहीं हुआ है, सो दे कॉइन देयर ओन वर्ड, दे सब्स्टिट्यूट द word, the sound with their own sound, and they continue with that. Once they said that is fixed, they never alter it for some, the same sound is not used for other things. उन्होंने मम्मम बोल दिया, मम्मम मतलब खाना है, उसको चावल चाहिए या रोटी चाहिए, they use this. More control over the vocal tract, more sounds are added and a vocabulary is constructed. So धीरे धीरे वो फर्स्ट ईयर से शुरू होके सेकेंड ईयर में आने तक उसका जैसा वोकल ऑर्गन्स डेवलप हुआ है, धीरे धीरे वर्ड्स आता रहेगा। इसका मतलब सब एकदम अच्छा आया ऐसा नहीं, बट दे कैन अटर दी वर्ड्स, धीरे धीरे उसका स्पोकन एबिलिटी इंप्रूव हुआ तो उसका वोकैबुलरी भी इंप्रूव हुआ, दे कैन अटर मोर वर्ड्स, दे कैन गिव मोर वर्ड्स, उसका ये सब इंप्रूव होता रहता है। सो दिस इज द फर्स्ट वर्ड्स स्टेज। तो यहाँ स्पेसिफिक चीज क्या है, अभी the sounds they are uttering, they have a meaning, so we can say language is coming up, language is coming up, and they try to convey one word, they try to convey their need in sentences in one word, एक word use करके वो convey करेगा, and they gradually improve their vocabulary। यहाँ one word क्यों use करेगा, because their vocal capacity improve नहीं हुआ है, so they perceive the word, if they are not in a position to speak, they
they substituted their own vocabulary, and धीरे धीरे when that capacity develops, then gradually they say that word. And we also start neglecting. वो मम्मम नहीं बोलेंगे, मुझे खाना चाहिए, वो बोल रहा है खाना 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 ऐसा बोल रहा है, then we also neglect मम्मम, so it goes and नया vocabulary develops. Okay, this is up to 2 years. Yes. Ma'am, I So have now, one doubt. हाँ, बोलो. Yes. मैम एक्चुअली नाउ डेज अभी जैसे जिनके जो पेरेंट्स मल्टीलिंगुअल होते हैं तो हाँ. उनके बच्चे दे आर नॉट एबल टू स्पीक लाइक टिल 3 years, ये कॉमन प्रॉब्लम रहता ऐसा है अभी ऐसा पेरेंट्स क्यों का। होता है? बिकॉज आपका एक लैंग्वेज यूज करना है, तो पेरेंट्स का एक लैंग्वेज है, केयर टेकर का एक लैंग्वेज है, बाहर लोगों का एक लैंग्वेज है. आप एक ही टाइम उसको लैंग्वेज क्या है पता भी नहीं, आप एक्सपोज किया, तो दे डू नॉट नो विच वर्ड टू टेक. समझ में आया? तो एज ए पेरेंट्स आपको पहले उसको अपना, आपको यू आर फ्लुएंट इन योर मदर टंग. अदरवाइज इफ यू वांट योर चाइल्ड टू लर्न दैट नेटिव लैंग्वेज, आप गुजरात में आए हो, आप मलयाली हो, मलयाली बोलना बंद करो, गुजराती बोलना सीखो. अदरवाइज इफ यू आर फ्लुएंट इन मलयाली, यू आर नॉट फ्लुएंट इन गुजराती, अवॉइड दैट इंटरेक्शन. हम क्या कर रहे हैं, एक ही टाइम सभी के लिए एक्सपोज करके बच्चा सीखेगा, रहे उसके अंदर लैंग्वेज के बारे में एक ढांचा ही नहीं आया. वो ढांचा पहले मातृभाषा से होना चाहिए. अदरवाइज इफ यू आर फ्लुएंट इन दोज, इंग्लिश ही आना है, इंग्लिश से ही शुरू करो. एक्सपोज द चाइल्ड फॉर वन लैंग्वेज. समझ में आया? मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इसलिए है. समझ में आया? हम सभी में किया तो बच्चा कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको बोलना आता है लेकिन किसके साथ क्या वर्ड बोले, क्योंकि मैं वो केयर टेकर की लैंग्वेज में वो मेरे साथ बात किया, मैं इंटरेक्ट नहीं करती हूँ, चुप हो जाता है. केयर टेकर के साथ मम्मी की लैंग्वेज बोला, केयर टेकर उससे इंटरेक्ट नहीं करती है. और इन दोनों की लैंग्वेज से बाहर इंटरेक्ट किया, कोई उससे बात नहीं करता है, सो ही इज कंफ्यूज्ड कि विच इज व्हाट टू स्पीक. समझ में आया? इसलिए पहले हमको अपनी लैंग्वेज, पेरेंट्स को अपनी लैंग्वेज सिखाना है, अदरवाइज दे आर नॉट गोइंग टू लर्न. वो ये प्रॉब्लम सभी में है, सब लोग यही पूछते हैं मेरे से, क्योंकि मैं ये लैंग्वेज के बारे में बताती हूँ. तो दिस इज द आइडिया, पहले आपको अपना लैंग्वेज आना चाहिए. ओके, ठीक है. सो अब ऑडियो किसी का आपका है, बंद करो, डिस्टरबेंस होगा. ओके. So from that one word stage, now they are going to two word stage. So it is begins around after 2 years. 2 years से 3 years या 4 years ऐसा करो. 4 years तक आजकल सब बच्चों को आता है, 6 months हम कर सकते हैं. So in 2 words stage, it is extension of 1 word stage. अभी instead of 1 word, they start using 2 to 3 words. Children continue to increase the repertoire of sounds and vocabulary they can produce according to the order of development that was begun in earlier stages. अभी खाना, पहले खाना बोलता है, अब खाना चाहिए, खाने में भी ये चाहिए, चावल चाहिए, रोटी चाहिए, ठीक है, सब्जी चाहिए. So they start using, they are becoming specific, क्योंकि अभी उसको उसके पास vocabulary है, they can utter those words. So they combine 2 words and say, otherwise instead of खाना, now they are showing their preference. सब्जी नहीं तो मुझे स्वीट चाहिए, नहीं तो बिस्किट चाहिए. A vocabulary of 50 or more words marks the beginning of this stage with more words being added. So बच्चा जब 1 word stage में है तो उसके साथ हमने बहुत सारा vocabulary शेयर किया, और because of speedy growth or something, when they attain the stage of 50 or more vocabulary, उसके पास 50 और उससे ज्यादा वर्ड्स आएगा, तब they start using 2 words. Okay. So यहाँ क्या है, how they are representing, उसमें थोड़ा आपको जान देना है. Child's utterances is now unmistakable. यहाँ कोई गलती नहीं है, उसको जो चाहिए exactly they are conveying their means. ओके, उसका एक एग्जाम्पल दिया है, व्हाट दे आर कन्वेइंग, वो अटरेंस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है. Although they are clearly linguistic in nature with meaning attached, they are still unlike the utterances of adult native speakers. अभी एक वर्ड से वो 2 वर्ड्स में आए, इसका मतलब ये है कि ये नहीं है कि वो पूरा सेंटेंस बोल रहा है, नहीं, they are conveying
a sentence with 2 words. Okay, यहाँ एक डिफरेंट सिचुएशंस, कहाँ ये क्या होता है, वो अटरेंस का क्या मतलब है, हाउ टू अंडरस्टैंड दैट, हम अंडरस्टैंड करते हैं, इसी को यहाँ एक्सप्लेन किया है. एन utterance कैन कैरी मोर देन वन मीनिंग. एग्जाम्पल, मम्मी सॉक. ओके, मम्मी सॉक्स, वो बोल रहा है मम्मी का मोजा है, मम्मी मोजा, इतना ही बोलता है. तो इसका मतलब है 2 वर्ड्स आता है, ये मम्मी का मोजा है, ये एक मीनिंग आ सकता है. और अदरवाइज इफ मम्मी इज पुटिंग दैट सॉक्स, मम्मी इज पुटिंग माई सॉक ऑन माई फुट. तो क्योंकि वो साथ में दिखाता है, मम्मी मोजा, इतना ही बोला, इसका 2 मीनिंग आता है. तो ये अटरेंस, वो 2 वर्ड्स जो यूज कर रहा है उसका एक से ज्यादा मीनिंग होता है. अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट हम अंडरस्टैंड करते हैं. Words are associated with meaning in several ways. Okay, sheep, ऐसा किसी जानवर या किसी पिक्चर को देख के फूल बोलता है, गुलाब को दिखाया, कुछ भी किसी भी चीज को दिखाया, किसी भी फूल को दिखाया, वो फूल बोलता है. गुलाब को भी दिखाया, रेड गुलाब है, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में दे हैव नो अंडरस्टैंडिंग. they know that is gulab, that's it, that is a flower. So they use a common word. Okay, different, इसमें भी वो लाल गुलाब दिखाओ, येलो दिखाओ, व्हाइट दिखाओ, और कुछ कलर की मिक्सिंग गुलाब दिखाओ, दे से गुलाब. ओके, शीप विल नॉट मीन व्हाइट वूली और लेग, कुछ नहीं है. शीप मीन एक जानवर है. ये वर्ड में भी यूज टू रिफर टू द टाइप ऑफ ए थिंग, नॉट ए पर्टिकुलर थिंग. यहाँ ये होता है कि दे ओवर एक्सटेंशन बोलते हैं इसको. कोई भी फूल को वो फूल बोल सकता है जनरल. ओके, शीप है. अदरवाइज हमारे यहाँ जनरल है तो बिल्ली को देखे, कुत्ते को देखे, किसी को देखा तो वो डॉगी ही बोलता है. डॉगी, ये डॉगी नहीं है, ये दूसरा है, पप्पी है, किटन है, ऐसा हम उसको we try to give them the vocabulary. So they use the same word to represent a particular category of things. All 4-legged animals, 4 पांव है, वो उससे इधर उधर घूम रहे हैं. They are almost resembling the first thing he encountered. समझ में आया? तो इसमें क्या होता है यहाँ, 1 minute, इसमें क्या होता है कि दे कंसिडर ईच, दे कैन नॉट डिस्टिंग्विश ऑल 4-legged एनिमल्स. तो उनको पहले बिल्ली की बच्चा से हमने किटन करके किया तो सबको किटन बोलता है, नहीं तो सबको डॉगी बोलता है. बंदर की बच्चे को भी देखो, छोटा है तो ये डॉगी है. दिस कैन बी टॉक्ड लाइक दिस. तो ये चाइल्ड में दिस इज ओवर एक्सटेंशन. लेकिन अंडर एक्सटेंशन भी होता है. अंडर एक्सटेंशन क्या है कि घर में हमारा एक पालतू जानवर है, तो उसका नाम हमने बता दिया, इसका नाम ये है, ब्राउनी है, तो खाली वो उसको ब्राउनी करके एड्रेस करेगा और बाकी चीजों को किट्टी या डॉगी है ऐसा बोलेगा. सो दे हैव दिस काइंड ऑफ डिस्टिंक्शन आल्सो. ओके, कभी वो उसका ऐसा एक्सपोजर है क्योंकि वो उसका नाम ले रहा है. ही अंडरस्टैंड वो भी डॉगी है लेकिन उसका नाम है ब्राउनी, तो उसको वो ब्राउनी बोलता है, इसलिए ब्राउनी बोलता है. बट बाकी जगह ही इज टेकिंग इट एज ए कॉमन वर्ड, तो डॉगी बोलता है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. तो ओवर एक्सटेंशन इज ए नॉर्मल थिंग. एक ही वर्ड से ऑल 4-legged एनिमल्स आर कन्वर्टेड इनटू डॉगी और किट्टी, जो भी है. ये वर्ड रिफर्स टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर अलाइक इन बेसिक वेज. तो शीप, वो शीप वर्ड बोल रहे हैं तो ऑल 4-legged एनिमल्स, आप फ्लावर दिखाए तो उसको शीप नहीं बोलेगा, इतना तो कैटेगराइजेशन उसके पास है. दे मे यूज द सेम वर्ड फॉर सेम कैटेगरी. ऑल 4-legged एनिमल्स को शीप या डॉगी बोलेगा, बट फ्लावर को आप दिखाया तो उसको शीप है ऐसा नहीं बोलेगा, इतना डिस्टिंक्शन तो होगा. सो दे आर यूजिंग दी वर्ड्स इन दिस. अटरेंसेस जो भी है उसका मीनिंग हम ऐसे निकालते हैं, ऑटोमेटिकली हम करते ही हैं उसका. ये दिस इज द आइडिया, द वे वो कॉन्टेक्स्ट को देख के हम इसको समझते हैं. ठीक है, कॉन्टेक्सचुअल क्लूज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अटैचिंग मीनिंग इन दिस स्टेज. इसलिए बच्चा क्या बोल रहा है,
क्या सोच रहा है, इसके लिए वो कॉन्टेक्स्ट में वो अपनी मम्मी को दिखा के वो बोल रहा है मम्मी मोजा, तो वो मम्मी का मोजा है। तो उस टाइम मम्मी पहना रही है मम्मी मोजा, तो बोल रहे मतलब मम्मी मुझे मोजा पहना पहना रही है। सो ये कॉन्टेक्सचुअल क्लूज के लिए हमको ज्यादा देख के हमको मीनिंग समझना है, हम वही करते हैं। दिस इज हाउ लैंग्वेज इज डेवलपिंग। तो हम इमीडिएटली उससे इंटरेक्ट करते हैं, अच्छा तो आपको आपकी मम्मी मोजा पहना रही है, अच्छा कितना अच्छा है आपका मोजा। सो देन इफ ही इज सेटिस्फाइड कि आपको वो समझ में आया, तो ही विल गो टू अदर थिंग, अदरवाइज वो वही बोलेगा मम्मी मोजा। तो हम थोड़ा चिढ़ाते भी है बच्चों को, एज इफ वी डोंट नो, समझ में नहीं आया, आप ऐसे बोल रहे हो, ये बोल रहे हो क्या, थोड़ा उसको चिढ़ाते हैं, वो हमसे झगड़ा भी करता है। सी ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग। तो कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक हम ये समझ लेते हैं। ठीक है, नाउ वी आर कमिंग इनटू द टेलीग्राफिक स्टेज, फोर्थ स्टेज। अभी फर्स्ट वर्ड हो गया, वन वर्ड हो गया, टू वर्ड हो गया, तो इसके बाद धीरे धीरे उसका वोकैबुलरी आ गया, तो they start using the language. In this stage, children begin stringing more than two words together, perhaps three or four or five at a time. लेकिन वो एक सेंटेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है, लेकिन एक अच्छा स्ट्रक्चर में सेंटेंस क्रिएट नहीं कर सकता है। तो अभी इसको टेलीग्राफिक स्टेज इसलिए बोला कि अभी पहले अभी आपके लिए एसएमएस की कोई प्रॉब्लम नहीं, जब मोबाइल पहले पहले आया, नहीं तो पहले के जमाने में टेलीग्राम सेंड करते थे, उसमें डिपेंडिंग ऑन द लेटर्स और वर्ड्स वो चार्ज होता था। तो मिनिमम चार्ज में रखना है, तो हम जैसे अभी एसएमएस लैंग्वेज में यूआर के लिए यूआर लिखते हैं, ऐसा बहुत कम सेंटेंसेस में वो टेलीग्राफिक मैसेज वो भेजते थे। तो इसलिए ये स्टेज को टेलीग्राफिक स्टेज बोलते हैं। मतलब आई गो मार्केट, इतना ही बोल रहा है वो, तो मुझे मार्केट जाना है, ऐसे भी कन्वे कर रहा है, अदरवाइज आई एम गोइंग टू मार्केट। ये भी कॉन्टेक्सचुअल क्लू से ही हमको पता चलता है। बट दे आर यूजिंग मोर वर्ड्स, बट बीच में उसका एडिंग्स नहीं है, ग्रामर वो सब नहीं, वो धीरे धीरे आएगा। तो बेसिंग ऑन दैट वी आर गेटिंग द मीनिंग, बट बिकॉज लुकिंग इनटू द शार्पनेस ऑफ द सेंटेंस, वो सेंटेंस को पूरा स्ट्रक्चर में नहीं बोल रहा है। जो पहला ऐसा टेलीग्राम्स में पैसा बचाने के लिए करते थे, पहले पहले मोबाइल फोन्स आया तभी एसएमएस मैसेज की लेटर्स 256 से ज्यादा जाना नहीं है। ठीक है, तो हम बहुत कंडेंस करके, बहुत रेस्ट्रिक्ट करके मैसेज को करते थे। सो बिकॉज ऑफ दिस कंडेंसिंग नेचर हम उसको टेलीग्राफिक स्टेज बोलते हैं। टेलीग्राफिक मैसेज ऐसा रहता है पैसा बचाने के लिए। तो यहाँ बच्चा विदाउट नॉलेज, विदाउट ग्रामेटिकल नॉलेज नहीं, उसको बोलने की क्षमता नहीं है, तो वो ये कर रहा है। सो दिस इज नोन एज टेलीग्राफिक स्टेज। यहाँ वो 4-5 शब्द तो बोल रहे हैं, लेकिन शब्दों को बोल के वो अपना मीनिंग कन्वे करके अपना काम निकाल लेता है। तो यहाँ एकदम अच्छा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चरल सेंटेंस निकला है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। ओके, नाउ 20 consonants are articulated and all vowels are articulated by approximately 3 years of age. ठीक है, धीरे धीरे उनको सब आया, 20 कॉन्सोनेंट्स वो पकड़ पाया, तो उसके साथ जो वर्ड्स बनता है वो सब वो बोल रहे हैं। तो 3 इयर्स आने तक वो 20 कॉन्सोनेंट्स और सभी वोवेल्स जो भी है कोई भी लैंग्वेज में वो पकड़ पाएगा। ऑल वोकैबुलरी डेवलपमेंट प्रोसेस कंटिन्यू एंड मोर वर्ड्स आर एडेड। यहाँ कुछ नहीं, आप जितना एक्सपोजर देखो, जितना उससे बात करोगे, उतना वोकैबुलरी वो डेवलप करेगा। दे ट्राई टू कन्वे, धीरे धीरे उसका लैंग्वेज इंप्रूव होगा। तो इसलिए हमको बैठ के बच्चों के साथ बात करना है। यहाँ हम उसको पोयम सिखाते हैं, छोटा छोटा श्लोक सिखाते हैं, मछली जल की रानी है, ये सब वोकैबुलरी मतलब ओरल एक्सरसाइज बच्चों को ज्यादा देना है। नाउ देयर ब्रेन इज वेरी फास्ट एनफ टू कैच एनी ओरल थिंग। आप कोई भी लैंग्वेज सिखाओ, कोई भी बोलो, उसको मतलब भी पता नहीं, एंड दे आर आल्सो नॉट, वो शेम है, कोई हंसेंगे ये भी नहीं। सो दे स्टार्ट ग्रास्पिंग एवरीथिंग। तो ओरल एक्सरसाइज आप बच्चों के साथ जितना करते हो, और बोलते बोलते उसका आर्टिकुलेशन ऑफ टंग विथ टीथ एंड चीक्स एंड अदर थिंग्स, इट आल्सो डेवलप। सो
they develop अच्छा, pronunciation also they can develop. So vocabulary development यहाँ हमको अच्छा करना है. Utterances exhibit phrase structure, that is they tend to follow the grammatical rules of the language. अभी वो यहाँ क्या है कि धीरे धीरे दे ट्राई टू इमिटेट, हम जो बोल रहे हैं वो बोल दिया तो ये नहीं है, आपको ऐसा बोलना है. सो इमीडिएटली दे पिक अप एंड दे ट्राई टू यूज दैट. ग्रामेटिकल रूल्स पता नहीं, बट दे ट्राई टू यूज दी और कम्युनिकेट दी करेक्ट लैंग्वेज, ग्रामेटिकली करेक्ट लैंग्वेज. उसको पता नहीं, वो बोल दिया तो इमीडिएटली हमको करेक्ट करना है, वोकैबुलरी इंप्रूव करना है, उसके साथ बात करना है कंटिन्यूअसली, वो थोड़ा बोल सके. बहुत ओवर एक्सास नहीं करना है, बट उसके साथ बैठ के हमको टाइम बिताना है. यहाँ हम नेग्लेक्ट किया तो उसका वो बोलने की क्षमता है, बट आप प्रैक्टिस नहीं करवाया तो उसको आएगा नहीं. आप जो बोल रहे हैं वो 3 साल तक उसको क्षमता आता है, लेकिन हर लोग अलग अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं. पहले एक लैंग्वेज बोलो, फिर धीरे धीरे आप एक्सपोज करो तो उसको पकड़ में समझ में आता है कि इसका लैंग्वेज अलग है. तो एक लैंग्वेज स्ट्रक्चर हम यहाँ क्रिएट करना है. टेलीग्राफिक स्टेज से हम उसको धीरे धीरे बियॉन्ड टेलीग्राफिक स्टेज लाना है. सो दिस इज द लास्ट स्टेज. ओके, so what is this last stage? Beyond telegraphic stage, from 3 years to ये जिंदगी भर चलता रहता है. अदरवाइज एटलीस्ट स्कूल जाने तक 6 years, उस टाइम जब ये सब आया आपका, अब तो 3 years में हम स्कूल भी भेज रहे हैं. बट हियर when we are sending our children to preschool, यहाँ 3 to 6 years में लैंग्वेज डेवलपमेंट पे एज ए लैंग्वेज टीचर है जो भी है, हमको लैंग्वेज स्किल्स पे ज्यादा ध्यान देना है. पहले कंटेंट आप दे रहे हो, वोकैबुलरी दे दो. बच्चे को क्या पता है, वो सेंटेंसेस ये नहीं, डॉक्टर क्या करता है तो 2-3 सेंटेंसेस उससे बोलवाओ, उसको समझ में आएगा. वो लिखने की, देखने की, इतना सारा एक्सरसाइज लिखना है, वो लिखने की क्षमता उसमें होती ही नहीं है, तो हमको वो एक्सरसाइज देना ही नहीं है. दे कुड नॉट अंडरस्टैंड सो मेनी कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि उसका इंटेलिजेंस लेवल इतना बढ़ता नहीं है. what they are developing, they are grasping the language. पहले लैंग्वेज ग्रास्प करे, अपना स्पोकन एबिलिटी इंप्रूव करे, तो आपका सुन के वो सीखता है, रेस्पॉन्ड करता है. इतना ही हमको ध्यान देना है. ठीक है, तो इसमें जनरली बोलते हैं वंस बच्चा 3 years के आगे आया तो ये लैंग्वेज एक्विजिशन खत्म हुआ, वी कैन स्टार्ट विद द नेक्स्ट. जो तो कब एंड होता है ये लैंग्वेज एक्विजिशन? बियॉन्ड टेलीग्राफिक एज भी कहाँ एंड होता है? सो देयर आर 2 opinions. एक ओपिनियन बोलता है by 6 years, क्योंकि पहले बच्चा 6 years में स्कूल जाता था. So because they develop basic abilities and enter school to develop higher abilities to expand language. अभी हम उसको पोएम सिखाया, श्लोक सिखाया, बहुत सारे चीज उससे बात करते करते उसको कहानी सुनाते हैं, बहुत सारे चीज करते हैं. तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया, फर्स्ट लैंग्वेज वो सुन सकता है, बोल सकता है. ये एबिलिटी डेवलप करके उसको स्कूल में भेजा तो नाउ दे कैन रीड एंड राइट. ओके, बट दूसरे ओपिनियन ये है कि दिस नेवर एंड्स, इट इज ए डायनामिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस. हम ऐसे ही सोचते हैं. अभी लैंग्वेज टीचर्स को या आपको कोई भी पढ़ाने, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाने क्लास में जाओ, दैट लैंग्वेज इज न्यू टू द चिल्ड्रन. इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट्स कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब है ना एक हायर लेवल पे 11th में शुरू होता है. सो देयर आल्सो यू हैव टू एक्सप्लेन द मीनिंग. सब टीचर्स को, सब्जेक्ट टीचर्स को ये वोकैबुलरी बच्चों के साथ इंप्रूव करना है, उसको बोलना है. लेकिन हम क्या सोचते हैं, खाली एक्सप्लेन करते हैं कंटेंट, ये वर्ड ये है, इसका मीनिंग ये है, इसको यहाँ पकड़वा दो, ये चीज आप थियरी एक्सप्लेन कर रहे हैं तो दिस शुड बी दी लैंग्वेज. हम उसके ऊपर एम्फोसिस नहीं डालते हैं, तो बच्चा समझता है लेकिन बोल नहीं पाता है. बिकॉज वी थॉट कि लैंग्वेज एक्विजिशन हो गया, अब वो पढ़ के समझेगा, जो आया समझा. नहीं है, वहां उसके लिए वो नया है. तो हमको फिर अगेन यू हैव टू ट्राई लाइक ए स्मॉल चाइल्ड, जो जिसको पता नहीं, वो पहले वहां आया है, वो बोल सकता है. सो टेल देम कि आपको ऐसा सेंटेंस लिखना है, ऐसे सेंटेंस में ही बात करना है. दिस इज द वे टू राइट, दिस इज द वे टू स्पीक, ये करना है. सो इट इज ए डायनामिक प्रोसेस. 6 years में या 3 years में खत्म नहीं हुआ है हमारा लैंग्वेज. एक लैंग्वेज डेवलप करो, उसकी बेसिस पे वो बहुत सारा लैंग्वेजेस सीखेगा. ओके, वही ये लास्ट 2 sentences बता रहे हैं. द फैक्ट दैट
there is a relationship between age and language development suggests that the age of the learner is important factor in language teaching. 3 साल में बच्चा आ रहा है तो पहले उसका ओरल लैंग्वेज डेवलप करना है, बाद में रिटन लैंग्वेज डेवलप करना है, 3rd स्टैंडर्ड में आए उसका रिटन एक्सरसाइज देना है। अभी स्कूल्स में क्या होता है, 1st स्टैंडर्ड में आया मदर फादर ब्रदर वो पकड़ भी नहीं पाता है, उससे पकड़वा के वो उससे बाय हार्ट करते करते मम्मी पापा की हालत बिगड़ जाती है। सो व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज वो 3 इयर्स में आया है, उसका फिजिकल डेवलपमेंट क्या है, मेंटल डेवलपमेंट क्या है, उसको समझ के कंटेंट रखो ना। ऐसा रख रहा है एज ए पेरेंट्स आप समझ सकते हो। मेरी बेटी तो बड़ी हो गई, बहुत लकी हूँ कि मैं ये स्टेज में नहीं आई, लेकिन अभी मैं सब लोगों से सुनती हूँ तो कंटेंट अबव द एज, क्या करोगे इतना पढ़ा के, धीरे धीरे एज मुताबिक कंटेंट रखो ना। The fact that language development begins as early as birth suggests that even preschool environment shouldn't ignore language, especially spoken language. खेलना है ये वो नहीं, वहाँ ओरल एक्सरसाइज ज्यादा रखो, बच्चे की स्पोकन लैंग्वेज के ऊपर ज्यादा ध्यान दो। ये एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन। और आपको बड़ौदा जैसी जगह आपको ये भी सोचना है कि सब बच्चे का फर्स्ट लैंग्वेज वो नहीं है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है, बट इट इज नॉट देयर नेटिव लैंग्वेज या मदर टंग, सब मदर अलग है, तो मुझे कैसे सिखाना है, दिस इज द आइडिया। सो दिस with this we stop this first language acquisition. I am stopping this sharing the content. Okay, तो if you want to ask anything, already हम थोड़ा ज्यादा करे हैं, नेक्स्ट क्लास में भी आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट ट्यूसडे मैं सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में डिस्कस करूंगी, तो उस टाइम आपको कुछ डाउट्स है तो आप बोल सकते हो। आई डोंट थिंक ये तो, क्योंकि सब लोग इस स्टेज से एज ए पेरेंट्स एज चिल्ड्रन हम सब इस स्टेज से गुजर चुके हैं, तो आई डोंट थिंक यू हैव so many doubts. Okay, so we will stop our discussion here and again meet for another class on Tuesday 11:45. जल्दी ज्वाइन करो आप लोग, 11:45 तक अगर मैं शुरू करूंगी तो I could finish by 12:30 sharp by time, ठीक है। ओके, Thank you, ma'am. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. ओके मैम, मैं थैंक ये यू। आपको आपकी क्लासमेट एक ये शेयर अपना व्हाट्सएप दिया है, उसमें मैं ये दोनों शेयर करूंगी। सो यू विल आल्सो गेट दिस पावर पॉइंट्स, इसकी बेसिस पे आप अपना नोट्स बना के रखो, ठीक है। अभी मैं शेयर करूंगी। ओके मैडम। ओके, बाय। Okay, ma'am.